Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students, I hope you're in good health and are doing very well by the grace of Allah. Today we are going to have lecture number 11 of our chapter 17, and its topic is going to be human nervous system. So previously in our previous lectures we learned about what a nervous system is and how many forms it can have in different organisms. We learned that there are two main types of nervous system in simple and complex organisms, and those were diffused nervous system and centralized nervous system. हाइड्रा के एग्जाम्पल में था डिफ्यूज्ड और प्लेनेरिया में था स्लाइटली सेंट्रलाइज्ड, यानी कि कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स और कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड नहीं था, लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम था. नाउ वी टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस. सो ह्यूमंस क्योंकि आते हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, तो इस वजह से इनके अंदर भी जो नर्वस सिस्टम है दैट इज़ centralized, because chordata जो phylum है that is the most advanced of all the simple organisms, और इसके अंदर सारे mammals आते हैं और different reptiles, birds वगैरह सारे इसके अंदर आते हैं. इस वजह से humans के अंदर भी nervous system जो है उसकी type centralized है. अब nervous system जो human nervous system है उसके कितने parts हैं और उन parts के क्या क्या functions हैं उसका हम एक overview पहले देख लेते हैं. Here you can see a complete flow chart of different parts of the nervous system of humans. So you can see first of all human nervous system has two types, two main types. Number one, we have central nervous system, यानी कि जो main system है वो, and number two we have peripheral nervous system. So as the names are indicating, central is going to be the main part of our nervous system or the center point of our nervous system, and peripheral nervous system is going to be like the parts of nervous system which are projected out from this center. इस center के आगे से जो branches वगैरह निकल रही हैं और वो different parts में body के spread out हो रही हैं, वो सारा peripheral nervous system के अंदर आता है. सो पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. तो सेंट्रल यानी हमारे नर्वस सिस्टम का जो पूरा सेंटर है इट इज़ ऑफ टू पार्ट्स. टू पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फर्स्ट वन इज़ ब्रेन, ऑफ कोर्स हमारा ब्रेन सबसे पहले, एंड देन सेकेंड पार्ट इज़ स्पाइनल कॉर्ड. बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड बोथ आर द हब्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑल द एक्शंस इन आवर बॉडी, which means any signal or any stimulus that is reaching our body is going to be processed in either brain or our spinal cord. So brain के बारे में हमें पता है it is the central part of our nervous system located in our in the anterior side of our body. It receives different sensory informations and then it produces, it stimulates or it forms a suitable response and then provides this response to the effectors to express them. कौन कौन से responses हो सकते हैं? There are memories, there are thoughts, there are emotions, and all kinds of stimuli which our body receives are processed in our brain. So brain is like the CPU of our body. Similarly, brain के साथ ही connected है spinal cord. Here you can see the word is cord, which is why we are included in phylum Chordata. So spinal cord extends out of our brain. हमारे brain के अंदर से ये originate होती है और हमारी जो lower back तक का region है उस वहाँ तक ये extend हो रही होती है. Spinal cord हमारे brain से हमारे lower back तक एक straight rod like cord like structure है जिसका काम क्या है? मेन काम उसका है टू कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन, यानी कि उसने ब्रेन का बॉडी के साथ कनेक्शन बनाना है, और वी कैन से इट्स अ पाथवे ऑफ मूवमेंट फ्रॉम आवर ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड ही का एक दूसरा फंक्शन होता है टू कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़. देयर आर सर्टेन रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, सर्टेन इनवॉलंटरी एक्शंस that happen in our body without involvement of brain. ब्रेन तक मैसेज जाने की बजाय जो भी स्टिमुलस स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है वहीं पर वो प्रोसेस होकर और उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाता है, और ये ऐसे एक्शंस में होता है जो बहुत फास्ट होते हैं या जो बहुत सडन रिस्पॉन्सेज जो प्रोड्यूस होने होते हैं,
जिनको हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होते हैं. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर से जो डिफरेंट पार्ट्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ब्रांचेस जो बाहर निकल रही हैं, जिसने पूरी बॉडी तक फैलना है और पूरी बॉडी के अंदर नेटवर्क एक बनाना है, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स एक्शन कर रहे हैं, दो तरह के न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं. वो हैं मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स. वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन डिटेल अबाउट बोथ दीज काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स. Motor neurons take messages from central nervous system to muscles and glands, and sensory neurons receive stimulus from sensory organs and take them to central nervous system. इसमें से जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उसकी मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं, यानी कि वो मैसेजेस जो ब्रेन से मूव होके मसल्स तक जाने हैं, वो दो तरह के सिस्टम्स के थ्रू जा सकते हैं. We have somatic nervous system and autonomic nervous system. The main difference between these two is somatic nervous system कंट्रोल करता है voluntary actions को, ऐसे actions जो पूरे सोच समझ के और हमारी बॉडी के कंट्रोल में होते हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऐसे सिग्नल्स को लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या मसल्स तक लेकर जाता है जो कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, या जो हमारी बॉडी के खुद ब खुद होने वाले या जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, वो वाले जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसमें हमारे मोस्टली जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो इसमें आते हैं. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वंस अगेन आगे दो टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है विच कंट्रोल्स फाइट और फ्लाइट, यानी कि एक्टिव या एक्शन वाला जो काम है वो सिंपैथेटिक के थ्रू होता है. एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जिसके अंदर रेस्ट और डाइजेस्ट, या जिसके अंदर बॉडी को किसी थ्रेट से वापस नॉर्मल कंडीशन की तरफ लेकर आने के लिए जो नॉर्मलाइज करने का काम है वो पैरासिम्पैथेटिक का है. सो एक्शन वाला काम या एक्टिव होने वाला काम सिंपैथेटिक का है. जिस तरह से अगर हम डरते हैं या हमारे हाथ पे कोई हॉट चीज़ लगती है तो हमारी हार्ट बीट जो फास्ट हो जाती है, या हमारी बॉडी का कोई भी जो रिस्पॉन्स है अगर वो फास्ट होता है, एक्टिव एक्शन होता है, वो सिंपैथेटिक की वजह से होता है, और पैरासिम्पैथेटिक की वजह से वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अब हम डिटेल में देखेंगे. हमें पता चल गया इसकी दो टाइप्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों क्योंकि सेंट्रल हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं तो इनके लिए प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है. वो प्रोटेक्शन हमें कुछ तरीक़ों से मिलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्रेनियम. हमने अपना सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में देखा था. ये बोन्स का ऐसा यूनियन है विच कवर्स आवर ब्रेन. देन स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्री हैं, सारे के सारे वर्टिब्री जो हैं उन्होंने इसको सराउंड किया हुआ होता है. Then there are certain meninges which protect both our brain and our spinal cord. Meninges जो होते हैं ये फाइबर्स होते हैं स्मॉल, जो कि हमारे ब्रेन के जो डेलिकेट पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. एंड ऑल्सो there is cerebrospinal fluid. So this is a type of fluid. It's a fluid which resembles our blood. जैसे कि हमारा ब्लड जो है एक फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में मूव करता है, तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये ब्लड से रिजेंबल करने वाला एक फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द उसके इर्द गिर्द एक्यूमुलेट हुआ होता है, ताकि किसी भी किस्म का जो शॉक है या किसी भी किस्म का जो बम्प है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को जो नुकसान पहुंचा सकता है उसके शॉक को एब्जॉर्ब ये फ्लूइड कर दे. सो जो हमारे जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों जो पार्ट्स हैं उनके सराउंडिंग में ये फ्लूइड होगा विच इज़ कॉल्ड cerebrospinal fluid. Another thing to remember is that our central nervous system is hollow, यानी कि हमारा ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अंदर से एम्प्टी है. एम्प्टी किस तरह से है? जिस तरह से हम प्रीवियस चैप्टर्स में अपने हार्ट के बारे में पढ़कर आए हैं कि हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, या वो उसके अंदर 4 खाने होते हैं. बिल्कुल उसी तरह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी अंदर से एम्प्टी होते हैं और उनके अंदर चैनल्स या फिर कुछ चैम्बर्स बने हुए होते हैं.
सो स्पाइनल कॉर्ड के केस में जो इंटरनल हॉलो रीजन है उसकी जगह पे सेंट्रल कैनाल होती है, यानी कि एक ऐसे है कि जैसे एक अंदर से हॉलो एम्प्टी ट्यूब है जिसके अंदर से सिग्नल्स ने और डिफरेंट चीज़ों ने पास आउट होना है। और ब्रेन के केस में बिल्कुल हार्ट ही की तरह वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह हार्ट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट जो चेम्बर्स थे उसके वो अंदर से एम्प्टी थे जिनको हम वेंट्रिकल्स या एट्रिया कहते हैं, उसी तरह ब्रेन के अंदर के भी डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं। और ये जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं सेंट्रल कैनाल की भी और वेंट्रिकल्स की भी, इनके अंदर प्रेजेंट होता है फ्लूइड जिसकी हमने बात की, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो इन दोनों पार्ट्स के अंदर होता है जो इनको फिल भी करता है। और उसको फिल करने का मकसद ये होता है कि वो इन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है और डिफरेंट सिग्नल्स इन पार्ट्स में आ रहे हैं उन फंक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। सो आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ एक्चुअली हॉलो, और उसके जो हॉलो होने की वजह ये चेम्बर्स हैं या ये कैनाल्स हैं जो हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में हमें नज़र आती हैं। So this was an introduction to central nervous system of humans. Inshallah next time we'll talk in more detail about our brain and spinal cord. So I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.